پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ وفاقی کابینہ میں گرما گرم بحث، وزارت ہوابازی سے معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پائلٹس کے لائسنس کی منسوخی کا عمل انتہائی پیچیدہ ہے۔ کابینہ نے جعلی ڈگری والے پائلٹس کی مکمل تفصیلات مانگ لیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں مشکوک لائسنس کا فورینزک کرایا جائے گا۔ لائسنس کو ایشو بنا کر حکومت نے پوری ایئر لائنز کو کریش کر دیا۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں پوری صنعت خطرے میں آ چکی، دنیا اسے ڈگری گیٹ کہہ رہی ہے۔ 18 ماہ لائسنس کی تحقیقات نہیں کی، اب ملبہ ماضی کی حکومتوں پر ڈالا جا رہا ہے۔ یو اے ای کا پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے خط۔ ایمریٹس ایئر لائنز کے 50 پاکستانی پائلٹس اور 4 فلائٹ آپریشن افسران کے لائسنس کی تصدیق کا مطالبہ۔ یو اے ای نے فلائٹ مینٹیننس انجینئرز اور افسران کے لائسنس کے طریقہ کار کی بھی وضاحت مانگ لی۔ غلام سرور خان پویلین جانے سے بچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی۔ کسی وزیر کے بیان سے قومی نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ ہم احتساب کے طریقہ کار میں مداخلت سے گریز کر رہے ہیں، عدالت کے ریمارک۔ حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، بلاول بھٹو کا انکشاف۔ کہتے ہیں تبدیلی سرکار نے ہر بحران کو تباہی میں بدل دیا، مافیاز تحریک انصاف کے فرنٹ مین ہیں۔ عمران خان تاریخی منافق وزیر اعظم ہیں، کٹ پتلی کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر پھینکنا ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ دہشت گرد ہب کے راستے کراچی پہنچے اور 3 دن ریکی کی۔ دہشت گرد حملے کے لیے غریب آباد سے لیاری ایکسپریس، ماڑی پور اور ٹاور سے ہوتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہنچے، سی ٹی ڈی نے پتہ چلا لیا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کی مدت میں 15 جولائی تک توسیع، شادی ہالز، تعلیمی ادارے اور ریسٹورنٹس بند رہیں گے، سیاسی، سماجی، مذہبی اجتماعات اور تقاریب بھی نہیں ہوں گی۔ کراچی میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی پارٹنرشپ نہ ٹوٹی، سمندری ہوائیں رک گئیں، پارہ 40 تک جا پہنچا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی، لوڈ شیڈنگ سے پانی کا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ مہنگائی کا سونامی حکومتی دعووں کو بہا لے گیا، آٹا، سبزیاں، انڈے، ٹماٹر اور مسالہ جات مہنگے۔ مئی کے مقابلے میں جون میں مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال جولائی سے جون تک مہنگائی کی شرح 10.74% رہی۔ اسلام آباد میں مندر کا معاملہ، فواد چودھری نے چودھری پرویز الہی سے معافی مانگ لی۔ ادھوری ویڈیو سن کر وفاقی وزیر نے پرویز الہی کو مودی سے ملا دیا تھا۔ مونس الہی کا کہنا ہے چودھری پرویز الہی نے کبھی مندر بنانے کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے سندھ میں مندر بنانے کی تجویز دی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مانسون کی بارشیں، سندھ کے صحرائی علاقے عمرکوٹ میں جل تھل ایک ہو گیا، جوب میں بھی موسلادھار بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بادل برسیں گے، اندرون سندھ، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش ہوگی۔ کراچی میں اگلے 2 دن شدید گرمی پڑے گی۔ 3 ماہ بعد پاکستانی کرکٹرز کی میدان میں واپسی، انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ 6 کھلاڑی کل انگلینڈ روانہ ہوں گے، حفیظ، فخر زمان، حسنین، رضوان، شاداب اور وہاب ریاض شامل۔ ووسٹرشائر پہنچنے پر دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ وفاقی کابینہ میں گرما گرم بحث، وزارت ہوابازی سے معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پائلٹس کے لائسنس کی منسوخی کا عمل انتہائی پیچیدہ ہے۔ کابینہ نے جعلی ڈگری والے پائلٹس کی مکمل تفصیلات مانگ لیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں مشکوک لائسنس کا فورینزک کرایا جائے گا۔ لائسنس کو ایشو بنا کر حکومت نے پوری ایئر لائنز کو کریش کر دیا۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں پوری صنعت خطرے میں آ چکی، دنیا اسے ڈگری گیٹ کہہ رہی ہے۔
18 माह लाइसेंस की तहकीकात नहीं की, अब मलबा माजी की हुकूमतों पर डाला जा रहा है। यूएई का पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत। एमिरेट्स एयरलाइंस के 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक का मुतालबा। यूएई ने फ्लाइट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और अफसरान के लाइसेंस के तरीक़ाकार की भी वजाहत मांग ली। गुलाम सरवर खान पवेलियन जाने से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर हवाबाजी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। किसी वजीर के बयान से कौमी नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। हम एहतसाब के तरीक़ाकार में मुदाखलत से गुरेज कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहते हैं तब्दीली सरकार ने हर बहरान को तबाही में बदल दिया। माफियाज तहरीक इंसाफ के फ्रंटमैन हैं। इमरान खान तारीखी मुनाफिक वजीर आजम हैं। कठपुतली को वजीर आजम हाउस से खींच कर बाहर फेंकना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे और 3 दिन रैकी की। दहशतगर्द हमले के लिए गरीबाबाद से लियारी एक्सप्रेस, माड़ीपुर और टावर से होते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। सीटीडी ने पता चला लिया। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत में 15 जुलाई तक तौसी। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सियासी, समाजी, मजहबी इज्तिमात और तकारीब भी नहीं होंगी। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की पार्टनरशिप ना टूटी। समंदरी हवाएं रुक गईं, पारा 40 तक जा पहुंचा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा हो गया। महंगाई का सुनामी हुकूमती दावों को बहा ले गया। आटा, सब्जियां, अंडे, टमाटर और मसाला जात महंगे। मई के मुकाबले में जून में महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल जुलाई से जून तक महंगाई की शरह 10.74% रही। इस्लामाबाद में मंदिर का मामला। फवाद चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही से मुआफी मांग ली। अधूरी वीडियो सुनकर विफाकी वजीर ने परवेज इलाही को मोदी से मिला दिया था। मोनस इलाही का कहना है चौधरी परवेज इलाही ने कभी मंदिर बनाने की मुखालफत नहीं की। उन्होंने सिंध में मंदिर बनाने की तजवीज़ दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। सिंध के सहराई इलाके उमरकोट में जल थल एक हो गया। जोब में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसेंगे। अंदरूनी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश होगी। कराची में अगले 2 दिन शदीद गर्मी पड़ेगी। बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मैदान में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। 6 खिलाड़ी कल इंग्लैंड रवाना होंगे। हफीज, फखर जमान, हुसैन, रिजवान, शादाब और वहाब रियाज शामिल। वोस्टरशायर पहुंचने पर दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। पायलट्स के जारी लाइसेंस का मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। विफाकी काबीना में गर्मा गर्म बहस। वजारत हवाबाजी से मामला मिस हैंडल हुआ। पायलट्स के लाइसेंस की मनसूखी का अमल इंतहाई पेचीदा है। काबीना ने जाली डिग्री वाले पायलट्स की मुकम्मल तफसीलात मांग लीं। शिबली फराज कहते हैं मशकूक लाइसेंस का फॉरेंसिक कराया जाएगा। लाइसेंस को इशू बनाकर हुकूमत ने पूरी एयरलाइंस को क्रैश कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं पूरी सनत खतरे में आ चुकी। दुनिया इसे डिग्री गेट कह रही है। 18 माह लाइसेंस की तहकीकात नहीं की, अब मलबा माजी की हुकूमतों पर डाला जा रहा है। यूएई का पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत। एमिरेट्स एयरलाइंस के 50 पाकिस्तानी पायलट्स और 4 फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक का मुतालबा। यूएई ने फ्लाइट मेंटेनेंस इंजीनियर्स और अफसरान के लाइसेंस के तरीक़ाकार की भी वजाहत मांग ली। गुलाम सरवर खान
पवेलियन जाने से बच गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर हवाबाजी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। किसी वजीर के बयान से कौमी नुकसान हुआ तो एक्शन लेना वजीर आजम का इख्तियार है। हम एहतसाब के तरीक़ाकार में मुदाखलत से गुरेज कर रहे हैं। अदालत के रिमार्क। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहते हैं तब्दीली सरकार ने हर बहरान को तबाही में बदल दिया। माफियाज तहरीक इंसाफ के फ्रंटमैन हैं। इमरान खान तारीखी मुनाफिक वजीर आजम हैं। कठपुतली को वजीर आजम हाउस से खींच कर बाहर फेंकना होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। दहशतगर्द हब के रास्ते कराची पहुंचे और 3 दिन रैकी की। दहशतगर्द हमले के लिए गरीबाबाद से लियारी एक्सप्रेस, माड़ीपुर और टावर से होते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे। सीटीडी ने पता चला लिया। सिंध में लॉकडाउन की मुद्दत में 15 जुलाई तक तौसी। शादी हॉल्स, तालीमी इदारे और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। सियासी, समाजी, मजहबी इज्तिमात और तकारीब भी नहीं होंगी। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की पार्टनरशिप ना टूटी। समंदरी हवाएं रुक गईं। पारा 40 तक जा पहुंचा। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से पानी का बहरान भी पैदा हो गया। महंगाई का सुनामी हुकूमती दावों को बहा ले गया। आटा, सब्जियां, अंडे, टमाटर और मसाला जात महंगे। मई के मुकाबले में जून में महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल जुलाई से जून तक महंगाई की शरह 10.74% रही। इस्लामाबाद में मंदिर का मामला। फवाद चौधरी ने चौधरी परवेज इलाही से मुआफ़ी मांग ली। अधूरी वीडियो सुनकर विफाकी वजीर ने परवेज इलाही को मोदी से मिला दिया था। मोनस इलाही का कहना है चौधरी परवेज इलाही ने कभी मंदिर बनाने की मुखालफत नहीं की। उन्होंने सिंध में मंदिर बनाने की तजवीज़ दी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून की बारिशें। सिंध के सहराई इलाके उमरकोट में जल थल एक हो गया। जोब में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बादल बरसेंगे। अंदरूनी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश होगी। कराची में अगले 2 दिन शदीद गर्मी पड़ेगी। 3 माह बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मैदान में वापसी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। 6 खिलाड़ी कल इंग्लैंड रवाना होंगे। हफीज, फखर जमान, हुसनैन, रिजवान, शादाब और वहाब रियाज शामिल। वोस्टरशायर पहुंचने पर दोबारा टेस्ट किए जाएंगे।